हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस बुक का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 9, गूगल एप्स। An application app is made of programs or codes. It is designed for the users of mobiles or computers to perform a specific function task. तो जो एप्लीकेशन होता है वो किससे बना होता है? कोड्स और प्रोग्राम्स की मदद से बना होता है। Mobile apps are more cost effective than desktop applications. We can install as many free apps as we want, provided we have enough space in our mobile to operate them. Some apps need an unlimited internet accessibility. There are some web apps which can use without installing them on our device. They run on the computer systems or mobiles through browser interface. तो जो ऐप है हम अपने मोबाइल्स में भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जिनको चलाने के लिए इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी चाहिए होती है, और कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो कि बिना इंटरनेट के भी हम यूज कर सकते हैं। गूगल Google is a search engine founded in 1998 by Larry Page and Sergey Brin। तो जो Google है आप सभी जानते होंगे, Google एक सर्च इंजन है। वो 1998 में फाउंड किया गया था बाय लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। In the year 2015, they opened a new company named Alphabet Incorporation, which took over Google and became the parent company of other Google subsidiaries. In December 2019, Sundar Pichai became the CEO of Alphabet Incorporation. तो 2015 में जो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन थे, उन्होंने एक नई कंपनी को स्टार्ट किया था जो कि थी अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन। उसने क्या किया था, जो गूगल थी उसको टुक ओवर कर लिया था। उसके बाद 2019 में सुंदर पिचाई जो कि एक इंडियन है, वो सीईओ बन गए थे अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन के। टुडे Google is mainly used as search engine, and this probably remains one of the most visible aspects of Google on the web. But Google is much more than a search engine. It has developed a number of web-based applications that are collectively known as Google Apps. तो Google जो है मेनली एक सर्च इंजन की तरह ही काम आता है, बट जो Google है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को भी डेवलप करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गूगल एप्स कहते हैं। गूगल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट परचेजर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द वर्ल्ड। जो गूगल है वो लार्जेस्ट कॉर्पोरेट परचेजर है रिन्यूएबल एनर्जी की। Starting in 2017, Google has matched its total electricity consumption with renewable energy purchases. यहाँ पे एक फैक्ट आता है स्टूडेंट्स, the term app was first coined by Apple when they created an app store in 2008. तो जो टर्म ऐप था वो सबसे पहले एप्पल ने फाउंड किया, डेवलप किया था। उन्होंने 2008 में एक ऐप स्टोर क्रिएट किया था जिससे ये वर्ड निकला था। Since then, this word app has been used for numerous programs. We can search anything on Google. We can use the microphone icon to speak the search words in Google. We do not have to worry about the spelling mistakes. तो Google में एक ही माइक्रोफोन आइकन भी आता है जिसमें आप बोल के भी अपनी जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ सकते हैं। आपको इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स की टेंशन नहीं लेनी होती। अब आता है एप्स ऑफ गूगल। Google provides several apps free of cost for our computer as well as mobile. Google's popular web applications include Google Translate, Google Assistant, Google Blogger, Google Earth, Gmail, Maps, Google Drive, Google Hangouts, Google Calendar, Google Docs, Google Web Store, YouTube and Google Meet। तो ये सारे apps जो हैं
गूगल के मोस्ट पॉपुलर वेब एप्लीकेशंस हैं. To use all the apps, we have to get registered with the Google. Let's learn about some popular Google apps. सबसे पहले Google Translate. Google Translate क्या है? ये एक फ्री ऑनलाइन लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विस है जो कि क्या करता है, इंस्टेंटली ट्रांसलेट कर देता है टेक्स्ट को दूसरी लैंग्वेजेस में. ये कौन कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है? इंग्लिश हो गई, अरेबिक हो गई, चाइनीज हो गई, क्रोशियन हो गई, सीजेक हो गई, डैनिश हो गई, डच हो गई, फ्रेंच हो गई, जर्मनी, ग्रीक, हिंदी, इटालियन, जापानीज, कोरियन, रशियन, स्पेनिश एंड many others. The Google Translate app for mobile allows us to instantly translate printed text visually. Just open the app, click on the image and point it at the text to translate. तो इसमें एक और ऑप्शन है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, सीधा पिक्चर ले सकते हैं और उस जो आपको ट्रांसलेट करवाना है उस पे पॉइंट आउट कर सकते हैं. A street sign, ingredient list, etc. We will see the text transforming live on our screen into the language chosen. अब आता है गूगल असिस्टेंट. गूगल असिस्टेंट एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो कि डेवलप किया गया था गूगल के थ्रू. दैट इज प्राइमरली अवेलेबल ऑन मोबाइल और स्मार्ट होम डिवाइसेस. ये हमारे मोबाइल्स में और स्मार्टफोन ये हमारे मोबाइल और स्मार्ट होम डिवाइसेस में अवेलेबल है. By using Android device, a user can quickly access Google Assistant by pressing and holding down home button or by simply saying OK Google. तो Android में एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम Google Assistant को quickly access कर सकते हैं by saying OK Google, और उसका जो home बटन है उसको अगर हम प्रेस करके रखें तब भी हम Google Assistant को access कर सकते हैं. With the Google Assistant, we can make a quick call, send text message, set reminders, set calendar events, play music, navigate places, get updates on weather information, the latest news and many more. तो Google Assistant के साथ हम ये सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं. अब आता है Google Blogger. Blogger is a blog publishing service by Google by which we can publish our ideas, opinions and stories online. With millions of blogs available on the internet, we can read what others have published. Blogger consists of a frequently updated collection of entries. तो Blogger क्या है? Google Blogger एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे जो लोग हैं वो अपने आइडियाज को, थॉट्स को पोस्ट कर सकते हैं with millions of people. तो आज के टाइम में मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स जो है वो अवेलेबल है इंटरनेट पे. Blogger consists of a frequently updated collection of entries. Most blogs focus on a particular topic or a subject area, although in a majority of blogs the subject is the person writing the blog. तो mostly जो blogs होते हैं उसमें जो subject होता है blog का वो क्या होता है, जो person होता है वो खुद ही subject होता है अपने blog का. The entries that appear on a blog are called posts. तो जो एंट्री होती है ब्लॉग की उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट कहते हैं. और जब हम ब्लॉग को पोस्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं. और जो पर्सन जो मेंटेन करता है ब्लॉग्स को उसे क्या कहते हैं? एक ब्लॉगर कहते हैं. अब आता है गूगल अर्थ. गूगल अर्थ एक इंटरैक्टिव मैपिंग प्रोग्राम है जो कि अर्थ के वास्ट एरिया को कवर करता है. Google Earth is generally considered to be remarkably accurate and extremely detailed. तो जो Google Earth है वो बहुत ही accurate और detailed ऐप है. Some major cities have such remarkably detailed images on Google Earth that one can zoom in close enough to read even the number plates on cars on a street. तो Google Earth इतना detailed ऐप है कि आप अगर उस पे जाके किसी भी सिटी की इमेज देखोगे तो अगर आप उसे जूम करके एक नंबर प्लेट भी पढ़ोगे कार का वो भी विजिबल होगा. अब आते हैं जीमेल. गूगल मेल और जीमेल इज अ फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल. ये एक फ्री मेल सर्विस है जो कि गूगल प्रोवाइड करता है. इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेलिंग एप्स एक्सेसिबल थ्रू अ वेब ब्राउजर ओवर द इंटरनेट. ये बेस्ट ऐप है, ये बेस्ट मेलिंग ऐप है.
It allows sending or receiving mails over the internet. We can also send an email to multiple users at a time. Gmail account is used to access other apps of Google. तो हम जो यूजर्स हैं वो एक टाइम पे मल्टीपल यूजर्स को भी ईमेल भेज सकते हैं इस ऐप के थ्रू, और एक जीमेल अकाउंट यूज किया जाता है ताकि जो एप्स हैं, डिफरेंट एप्स जो हैं गूगल के, वो एक्सेस कर सकें। अब है गूगल मैप्स। इन द अर्लियर डेज व्हाइल ट्रैवलिंग वी यूज्ड टू कैरी पेपर मैप्स एंड कंपास टू हेल्प अस रीच आवर डेस्टिनेशन विदाउट गेटिंग लॉस्ट। तो पहले के टाइम में हम क्या करते थे, ट्रैवलिंग के टाइम पे पेपर मैप्स कैरी करते थे या फिर कंपास कैरी करते थे, बट ड्यू टू एडवांसमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ वी हैव डिजिटल मैप ऑफ एनी प्लेस अराउंड द ग्लोब। तो अब हमारे पास मोबाइल्स के अंदर ही डिजिटल मैप आ गए हैं। वी कैन एक्सेस द मैप थ्रू द वेब ब्राउजर और मोबाइल ऐप। गूगल मैप्स इज अ डिजिटल मोबाइल नेविगेशन प्रोग्राम that provides detailed information about the geographical region of particular area। तो इसमें गूगल मैप में बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है सारे ज्योग्राफिकल रीजन्स की। Use layers to find places, transit, traffic, biking, terrain, street view, COVID-19 info and wildfires। With Google Map, we can find traffic for our commute, transit lines in a new city, bicycle-friendly routes, satellite imagery, information about the landscape, places nearby। तो Google Map को यूज करके हम ये सारी चीजें जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। By default, the map appears in the map view. However, we can change the view by clicking on the map type and choose the desired view option। तो बाय डिफॉल्ट जो मैप है वो मैप व्यू में अपीयर होता है, पर अगर हमें उसकी टाइप चेंज करनी है तो हम मैप टाइप पे जाके उसका व्यू जो है चेंज कर सकते हैं। Google Maps can be handy to see a real world top down view of any location. Satellite view shows the satellite image of the selected region. Click on the satellite option to open the map in satellite view। तो गूगल मैप्स में एक सैटेलाइट ऑप्शन भी आता है जिसमें आप कोई भी प्लेस का सैटेलाइट व्यू देख सकते हैं अपने फोन्स में। अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब आता है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव इज क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस डेवलप्ड बाय गूगल। The synchronization feature allows user to download and upload files into the remote server। तो इस ऐप में क्या होता है, जो यूजर है वो अपनी फाइल्स को डाउनलोड कर सकता है और अपलोड कर सकता है इसमें। विद गूगल ड्राइव मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस अ सिंगल फाइल एट द सेम टाइम। तो गूगल ड्राइव को यूज करके मल्टीपल यूजर्स जो है एक सिंगल फाइल को एक टाइम पे यूज कर सकते हैं एट डिफरेंट लोकेशंस एंड फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस, चाहे वो डिफरेंट लोकेशंस पे हो और डिफरेंट डिवाइसेस के साथ। We can safely store our media files and documents on Google Drive। All the data in Google Drive is encrypted, that is, we have to grant permission to others to access, edit or view our files। तो जो Google Drive है वो encrypted होता है, मतलब अगर कोई और यूजर हमारी फाइल्स को ओपन करना चाहेगा तो उनको एक परमिशन ग्रांट करनी होगी आपसे पहले। Google Drive encompasses Google Docs, Sheets and Slides and Office suites that permits collaborative editing of documents, spreadsheets, presentations, drawings, forms, and many more. We can also save email attachments sent to us through Gmail directly to the Google Drive. We can easily preview Microsoft documents, Adobe files, image files, audio files, and video files before downloading. Files created and edited through the Office suites are saved in Google Drive। Look at the following steps to use the Google Drive। तो अब आप इन स्टेप्स को पढ़ के Google Drive को कैसे यूज करते हैं वो देख सकते हैं। सबसे पहले आपको लॉग इन करना होता है एक Gmail अकाउंट में। ऑन द टॉप ऑफ द विंडो वी विल सी अ डॉटेड स्क्वायर कॉल्ड गूगल एप्स। टॉप पे आपको एक डॉटेड स्क्वायर दिखाई देगा जिसको गूगल एप्स कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज गूगल एप्स हब।
क्लिक ऑन द स्क्वायर, आपको स्क्वायर पे क्लिक करना है, एक मेन्यू अपीयर होगा विद द नेम्स एंड आइकन्स ऑफ द वेरियस गूगल एप्स। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट गूगल एप्स के क्या होंगे, नेम होंगे और उनके आइकन्स होंगे। तो आपको क्लिक करना होगा, गूगल ड्राइव आइकन पे। देन गूगल ड्राइव opens in a new tab or a new window in the browser. On the left hand side of the browser window is a navigation pane with many options such as new, my drive, share, recent, start, trash, storage and by storage. तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक नेविगेशन पेन दिखेगा जिसमें आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब आता है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स इज अ फ्री ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जो गूगल डॉक्स है ये भी एक फ्री ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जैसा ही है, बट it is a cloud based program, that is the program does not reside on our computer. ये एक cloud based program है। It was started by Google, ये भी Google के थ्रू स्टार्ट किया गया था on March 9, 2006. As part of its complete office suite, we can access Google Docs from all devices and platforms. हम इसको किसी भी डिवाइस से और प्लेटफॉर्म से यूज कर सकते हैं। All we need is an internet connection and a web browser. हमें सिर्फ क्या चाहिए होगा, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और एक वेब ब्राउजर चाहिए। अब आता है गूगल शीट्स। गूगल शीट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? गूगल शीट इज द अदर प्रोग्राम इन द क्लाउड बेस्ड सूट विच इज सिमिलर टू एक्सेल। तो ये किसके सिमिलर है? एक्सेल के सिमिलर है। दिस स्प्रेडशीट एप्लीकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन, ये मार्च 9, 2006 को इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वर्क्स लाइक एनी अदर स्प्रेडशीट टूल, बट सिंस इट इज एन ऑनलाइन ऐप, it offers much more than just a spreadsheet tool. Google Sheets is free and accessible over the internet from anywhere across the globe. Multiple users can work on the same spreadsheet simultaneously. तो Google Sheets पे भी multiple users एक साथ काम कर सकते हैं। It works from any device including iOS and Android. Google Sheets has the option to open Excel files. Google Sheet के पास एक और ऑप्शन है कि वो Excel files को भी ओपन कर सकता है and convert them to Google Sheets, और Excel files को Google Sheets में कन्वर्ट कर सकता है और वाइस वर्सा, मतलब Google Sheets को भी वो Excel फाइल में कन्वर्ट कर सकता है। फाइल्स गेट सेव्ड ऑटोमेटिकली हियर, इसमें जो फाइल्स होती हैं खुद सेव हो जाती हैं, सेव करने की जरूरत नहीं होती। अब आता है गूगल स्लाइड्स। गूगल स्लाइड्स एक ऑनलाइन वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, जो कि डेवलप्ड किया था गूगल ने 2006 में। इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं ऑनलाइन गूगल स्लाइड्स की हेल्प से। इसमें टेम्पलेट्स हैं, बहुत सारे इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, एनिमेशंस हैं। हाइपरलिंक टूल कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ लिंक टू गो फ्रॉम आवर करंट स्लाइड टू दी अनदर स्लाइड। तो इसमें एक हाइपरलिंक टूल है जो कि क्रिएट किया जाता है, जो कि एक लिंक क्रिएट करता है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच में। We can edit the presentation through our smartphones with the help of Google Slides app. तो हम जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो हम अपने स्मार्टफोन में भी एडिट कर सकते हैं गूगल स्लाइड्स की हेल्प से। If others are also working on Google slide presentation, we can chat, leave comments and work simultaneously on the presentation. We can add real-time automatic captions when we present in Google Slides and can also embed slides in blogs and websites. Next आता है YouTube. YouTube एक मोस्ट वाइडली यूज्ड गूगल ऐप है। ये एक वीडियो शेयरिंग सर्विस है जहाँ पे कि जो यूजर्स हैं वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उस पर कॉमेंट कर सकते हैं और अपनी खुद की भी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। और जो वीडियोस है हम पीसीज के थ्रू, लैपटॉप्स के थ्रू, टैबलेट्स के थ्रू या फिर मोबाइल फोन के थ्रू भी
एक्सेस कर सकते हैं। द यूट्यूब टैगलाइन ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ मींस एनीवन कैन अपलोड देयर वीडियो एंड शेयर इट विद अदर्स। तो जो यूट्यूब की टैगलाइन है जो कि है ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, इसका मतलब है कि आप अपनी खुद की वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो यूट्यूब जो है 2005 में फाउंड किया गया था और जब से इस पे बिलियंस ऑफ वीडियोस जो है अपलोड की जा चुकी हैं। The videos can be of any topic, any subject such as fitness, food, travel, education, blogs and many more. इस पे हर टाइप की वीडियोस जो है अपलोड की जाती है। When watching a video on YouTube, we can click on thumbs up. If for any reason we did not like the video, click on thumbs down. तो वीडियो के नीचे आपको एक थम्स अप और थम्स डाउन का आइकन दिखता है। तो अगर आप उस वीडियो को लाइक करते हैं तो आप थम्स अप का वीडियो देते हैं, अगर आप उस वीडियो को लाइक करते हैं तो आप थम्स अप का आइकन पे प्रेस करते हैं। अगर आप उस वीडियो को लाइक नहीं करते तो आप थम्स डाउन का आइकन प्रेस करते हैं। If we like the video and want to share with our friends, अगर आप वीडियोस को शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। We can save a video by clicking on save option. इसमें वीडियो सेव करने का भी ऑप्शन होता है। Some YouTube channels have very good content and if we want to know when their new videos will be released, we can click on subscribe button. तो जब आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पता चल जाता है वो वीडियोस कब अपलोड कर रहे हैं। और एक बेल आइकन भी होता है जिसको अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस आती हैं जब वो चैनल न्यू वीडियोस अपलोड करते हैं। तो अब आता है गूगल डिवाइसेस। सबसे पहला आता है स्टूडेंट्स गूगल पिक्सल। गूगल पिक्सल क्या है? गूगल पिक्सल एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन है जो कि डिजाइन किया गया था गूगल के थ्रू। इट इंक्लूड्स ऑल आवर फेवरेट गूगल एप्स टू ब्रिंग अस अ फास्ट, सीमलेस एंड इजी टू यूज एक्सपीरियंस। इसमें सारे गूगल के एप्स जो हैं वो हैं। Similar to Nexus devices, it receives Android updates directly from Google. All Pixel smartphones include very large storage for all media. Pixel is the first phone with the built-in Google Assistant. Pixel एक पहला फोन है जिसमें built-in Google Assistant है। नेक्स्ट आता है गूगल ग्लास। गूगल ग्लास एक स्मॉल लाइट वेट वेरेबल कंप्यूटर है with a transparent display for hands-free work. It is a voice-controlled Android device which looks like a pair of eyeglasses. ये दिखने में एक pair of eyeglass की तरह दिखता है, पर ये एक voice-controlled Android device है। It enables the user to view information or take photos or videos that are projected to a miniature screen. तो ये क्या करता है? ये फोटोज भी क्लिक कर सकता है और वीडियोज भी बना सकता है। User can control the device through voice commands or by touching controls on its frame. तो user जो है voice commands के थ्रू भी इस डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है और अगर इसके फ्रेम को टच करेंगे तो तब भी ये जो डिवाइस है वो कंट्रोल होगा। अब आता है गूगल नेस्ट। गूगल नेस्ट is a voice activated smart speaker which enables user to speak voice commands to interact with services through Google Assistant. तो Google Nest एक voice activated smart speaker है जो कि हमें enable करता है voice commands देने के लिए और Google Assistant के थ्रू services से interact करने के लिए। It can play music and news, perform home automation tasks and answer questions. तो Google Nest जो है वो हमारे लिए म्यूजिक भी प्ले कर सकता है, न्यूज भी प्ले कर सकता है और होम ऑटोमेशन टास्क को भी परफॉर्म करता है और क्वेश्चंस का भी आंसर करता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे चैप्टर की समरी आ जाती है, आप इसे एक बार रीड करना, इससे आपका जो चैप्टर है वो फिर से अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग।